Good morning, students. Welcome to our class. Now, in the previous chapter, we have in the first part, we have read about the three questions. Our first chapter, a king want to know the answer of three questions. तीन प्रश्नों के वो उत्तर जानना चाहता था. So, and when he went to a hermit to ask the answer, but hermit was digging a dug. At that time, the king went there and helped the hermit. In the meantime, they saw that a man was running there. Now, in the second part, we will start from here. Now, the king turned round and saw a bearded man running towards them. Bearded, that means bearded. Bearded का मतलब क्या होता है? Bearded. Bearded means दाढ़ी वाला. Bearded means दाढ़ी, जिसके दाढ़ी वाला होता है वो. Running towards them. His hands were pressed against his stomach. तो उसके जो हाथ थे were pressed against थे किसके? पेट के, यानी वो अपने हाथों से पेट को पकड़े हुए था. From which blood was flowing, जिससे कि खून बह रहा था. Following का मतलब क्या होता है? Following का मतलब होता है बहना. Following का होता है बहना, यानी खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted यानी consciousness मूर्छित हो गया. और जब वे राजा के पास पहुंचा, वह मूर्छित हो गया. And fell to the ground, और जमीन पर गिर गया. The king and the hermit who were there, जो कि वहां पर थे, उन्होंने क्या किया? Remove the man's clothing and found a large wound in his stomach. Wound का that means क्या होता है? Wound means घाव. और इस तरह से उन्होंने वहां पर देखा कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसके पेट पर क्या था? घाव था. वुंड यानी घाव. And his stomach यानी पेट. The king washed and covered it with his handkerchief. Handkerchief का मतलब होता है रुमाल. तो राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल से उसको बांध दिया, ढक दिया. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून ने बंद होना नहीं रुका, यानी खून बंद हुआ ही नहीं रुकने के लिए. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो राजा ने क्या की? redressed यानी dressed again, मरहम पट्टी की दोबारा मरहम पट्टी की ना, तो उसके आंसर से ये हुआ ब्लीडिंग स्टॉप. उसके आंसर से ब्लीडिंग स्टॉप हो गई. The man felt better. अब उससे अच्छा महसूस हुआ आदमी को. Asked for something to drink, और पीने के लिए कुछ मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. और राजा ने क्या किया? राजा एक स्वच्छ जल लेके आया और उसे दिया. By this time the sun had set. और इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था. And the air was cool. और हवा ठंडी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो राजा ने साधु की सहायता से घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले गए और उसे बेड पर लेटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. और आदमी ने अपनी आंखें बंद की और ले का मतलब होता है लेटना, और चुपचाप लेट गया. What do you mean by lay? Lay means लेटना. It is a lay यानी लेटना, और लेट गया वो चुपचाप. The king tried by his walk and the work he had done. So the king tired and थक गया था. By his walk and the work he had done. उसने वर्क किया था ना, उसने भी खड्डे खोदने का वर्क किया था, इसलिए वो थक गया था. Lay down on the floor, आंगन पर लेट गया. And slept through the night, और पूरी रात्रि में सो गया. When he awoke का मतलब जागना, यानी जब वो जागा, यानी next morning जब वो सुबह जागा. It was several minutes before he could remember. बहुत सारी मिनट हो गई थी जब उसने क्या कि देखा, उसे बहुत पुरानी बातें याद आई. उसके बाद before he could remember, just like that. अब उसने साधु से पूछा where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. तो उसने याद आया उसे कि where he was, कि वह कहाँ था. and who the strange bearded man, वो अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था. अब उसने कहा forgive me, said the bearded man in a weak voice. Forgive me, that means मुझे माफ कर दो, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, बहुत ही कमजोर आवाज में कहा. When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग गया था. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king.
अब राजा ने उसको वापस जवाब दिया कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हें माफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, यानी कि तुमने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूँ। यू डू नॉट नाउ मी। अब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने वापस उसको जवाब दिया, यू डू नॉट नाउ मी बट आई नाउ यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। तो आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं में से हूँ। दैट मीन्स आई एम द एनिमी ऑफ यू। हु श्योर, श्योर का मतलब सौगंध खाई है ना। श्योर का मतलब क्या होता है, सौगंध खाना। श्योर, श्योर का मतलब होता है सौगंध खाना। एंड रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना। और तुमसे बदला लेने की सौगंध खाई है। उसने आदमी ने कहा मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। एंड आई हु श्योर, श्योर यानी सौगंध खाना। रिवेंज, रिवेंज का अर्थ क्या होता है, बदला। रिवेंज, REVENG, रिवेंज यानी बदला। ऑन यू बिकॉज, अब उसके क्यों खाया उसने, ऐसा क्यों किया, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, है ना। सीज का मतलब यहाँ पे टुक बाई फोर्स, जबरदस्ती ले लेना, और मेरी संपत्ति को जबरदस्ती ले लिया। सीज का मतलब जबरदस्ती से लेना। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। तो मैं जानता था you had gone to alone see that hermit, कि तुम इस साधु से अकेले मिलने जाने वाले हो, और मैंने उसी समय मन तुम्हें तो रास्ते में मारने का मन बना लिया था। I made up my mind to kill you on your way home but the day passed and you did not return। लेकिन दिन गुजर गया, तुम वापस नहीं लौटे। उसने कहा भाई मैंने पहले से ये प्लानिंग कर ली थी कि जब तुम घर पे आओगे वापस तो मैं तुम्हें रास्ते में मार दूंगा, लेकिन वो लौटा ही नहीं, है ना। और नहीं लौटा तो उसके बाद उसने ये प्लान हो गया। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैंने मेरे छिपे हुए स्थान को छोड़ा, यानी मैं अपने छिपे स्थान से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तुम्हारे अंगरक्षक के पास आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहचानना। रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचाना, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। पहचानना, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब बच निकलना। एस्केप्ड का मतलब होता है बच निकलना, और मैं वहां से बच निकला। हिम, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, यदि तुमने मेरे घावों की मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, तो मेरे मतलब इसने कह रहा है कि मैं तुम्हें मारने की इच्छा रखता था। दैट मीन्स मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू ऑल द सेम, फॉरगिव मी। उसने कहा अब यदि मैं जीवित हूँ तो आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल का मतलब होता है वफादार, तो मैं एक वफादार नौकर के रूप में तुम्हारी सेवा करूंगा। एंड आल्सो एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मेरे पुत्रों को भी क्या कहूँगा, द सेम, मेरे पुत्रों को भी, जो मेरे बेटे हैं उनको भी यही करने के लिए कहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, राजा बहुत खुश हुआ अपने शत्रु से शांति रखने के लिए, यानी शांति बन गई उसके, तो उसके लिए राजा बहुत खुश हुआ। और द किंग वॉज very happy to have made peace with the enemy so easily had to have won him over as a friend, और एक मित्र के रूप में उसे जीत लिया। he not only forgave him but said, उसने उसे न केवल माफ किया बल्कि कहा he would send his servants and his own doctor to look after him। look after का मतलब होता है देखभाल करना। look after का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो वो अपने नौकरों को भेजेगा और हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, तो उसकी देखभाल करने के लिए अपने डॉक्टर को भी भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस आदमी से उसकी संपत्ति को वापस देने का वादा किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, तो जो घायल व्यक्ति था वो जा रहा था। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, तो राजा झोंपड़ी से बाहर आया और साधु को चारों तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, तो जाने से पहले एक बार वह अपने प्रश्नों के
उत्तर प्राप्त करने का इच्छुक था। उसके 3 प्रश्न थे जो वो हरमिट से जानना चाहता था। द हरमिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। तो हरमिट उसको मिला, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। सोइंग सीड्स, सोइंग का मतलब बोना, सो का मतलब क्या होता है बोना, सीड यानी बीज, इन द बेड तो क्यारियों में बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हरमिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। उसने कहा कि अब अंतिम बार मैं आपसे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने का आग्रह करता हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति। क्या उसने कहा भाई अब जो मैं आप कहें वो उत्तर देने का आग्रह करता हूँ। तो इस प्रकार उसने उससे वापस अपने 3 प्रश्नों के जो 3 प्रश्न थे उनसे उत्तर पाने के लिए वो वापस उसने उससे आग्रह किया। उसने उससे वापस आग्रह किया। उसमें आग्रह करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसने कहा, अब राजा जो हरमीट से उसने आग्रह किया था तो उसने कहा यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से ही उत्तर दे दिया गया है। said the hermit, still bending down on the ground and looking up at the king he stood before him. उसने कहा तुम्हें पहले से ही आंसर दे दिया गया है। तो हरमिट अभी भी क्या हुआ था, बेंडिंग था, झुका हुआ था ग्राउंड पे, एंड लुकिंग अप द किंग्स, और राजा की तरफ देख रहा था, एज स्टूड बिफोर हिम, जैसे उसके सामने वो खड़ा हुआ। हाउ आई हैव आई बीन आंसर्ड, तो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे उत्तर दिया गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते, रिप्लाइड द हरमिट, कि इफ यू हैड नॉट पिटियड माय वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बर्ड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अब वो वापस उसको जवाब दे रहा है। उसने जवाब दिया कि इफ यू हैड नॉट पिटियड, पिटियड का मतलब दया करना, पिटियड मीन्स दया करना, दया करना। माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुम कल मेरी कमजोरी पे दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये खड्डे नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते, एंड देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वह आदमी तुम पर आक्रमण कर देता, एंड यू वुड हैव विज्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने वो तो आक्रमण कर देता, और यू वुड हैव विज्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने मेरे साथ ठहरने की इच्छा की थी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बैड्स, तो सबसे जो महत्वपूर्ण समय था वो था जब तुम वो क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उसका पहले क्वेश्चन का आंसर उसने दे दिया। अब उसने कहा आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एंड डू टू मी गुड वे आवाज, और जो कि अच्छा था, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो तुमने अच्छा कार्य किया। आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड, कि यदि तुमने उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं की होती तो वह मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, यानी तुम्हारे साथ बिना शांति के किए हुए या बिना संधि किए हुए बगैर वह मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए क्या किया, वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, यानी जो भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, यानी सबसे पहले हमेशा याद रखो, उसने कहा हमेशा याद रखो कि सबसे पहले कि एक समय है जो कि महत्वपूर्ण है, वो समय है अब, यानी कि जो अब भी है वो टाइम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू हैव, और यही जो समय होता है जिसमें हमारे पास कुछ करने की शक्तियां होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे आवश्यक व्यक्ति वह है जो कि एक विशेष क्षण पर तुम्हारे साथ है।
है ना। उसने कहा कि वही व्यक्ति तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जो विशेष समय पर तुम्हारे साथ है। फॉर नो वन नाउस, क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम चाहे क्या किसी दूसरे से मिल पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था उस व्यक्ति से के साथ अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें वी वर सेंड भेजा गया है इन टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट पर्पज, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो हमें इस उद्देश्य के लिए अकेले भेजा गया है। तो यहाँ पर इस तरह से राजा ने हरमिट से तीनों क्वेश्चन के आंसर पाए। और आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द chapter. Now in the next conversations we will read more question and answers. Have a nice day.